So, welcome back. This is Prashant. I hope you all are doing well. So, today we are going to discuss the topic of Indus Valley Civilization. That's the pen. So, today we will be discussing the Indus Valley Civilization. Before this video, we have already covered two things. First one, timeline, timeline of history. If you have not covered yet, so link will be in the description. You can just go and check out that video. And second was the Stone Age, right? Stone Age. So today we are going in the third topic. So all the topics we are covering will be solely depend upon the timeline of the history, right? Why so? Because everything, if we go by the chronology, that will help you out somehow. So we'll be focusing on the chronological uh, progression of the history. So our videos will be coming in that way only, right? So let's begin. So as you can see, this is the biggest civilization of its time. So when the Britishers were ruling India, so they were like, we are the most ultra civilized people, and we are the one chosen one who is going to tell all the world to how to live, how to rule, and all. So they think that they are chosen one to rule other people, and other people are being just made for being ruled. So uh, once this Indus Valley civilization came into the picture, so things have changed a lot. So there are a lot of there are very uh, important aspect which uh, this topic has given in the census of the Indians, because this has given us the sense of acknowledgement of our most advanced and uh, you can say most advanced and uh, advanced, I would say advanced only. So this is the area which has given a very great impact in the conscience of the Indians. So let's start this topic, industrial civilization. So this will be the uh, chronology in which we are going to discuss this presentation. First will be the excavation. So what are the sites, and who has discovered those sites? And we will discuss the important sites, some of the important sites, because now there are a lot of sites have been already discovered, excavated, sorry, throughout the India and as well as Pakistan. So we will discuss the areas in which these sites have shown up, excavated. So we will also discuss the polity of the Indus Valley civilization. IVC is a Indus Valley civilization, right? Indus Valley civilization. So economy. So what were the economy of Indus Valley civilization? We will also go for the religious practices of the Indus Valley civilization, and then after we will discuss the downfall or end of Indus Valley civilization. So we will go for the first excavation. Okay. So let's start with excavation. So this is very scientific thing to do about, because if on a layman term, if you go and ask somebody that you had to dig something and dig out and check what is within the earth, but if any unskilled labor will go there and they will just messed up all the surface, all the area. So as you can see, so these are the rivers, but somehow they must have taken some sort of training,
because without training they can create a mess over there. Why so? Because the things they are going to dig out, those are those will be delegates, and which will be the those will be the scientifically important. Those artifacts will be carrying the scientific importance, and anything which need to be scientific you can say analysis, that should not be contaminated, because if the contamination, any sort of contamination is there, so that contamination will lead to the improper result, right? So for the right result you have to be very precise, very scientific temperament. So, the work should be done with a very high scientific temperament. So that's how excavation is to be done. So now let's start with the real history, right? So what things exams ask. So let's go for that. So information about the civilization in India was available, sorry, and should not be there. In India was available since 1870s. सर यहाँ पर इंडिया में 1870 से इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, लेकिन बात इतनी सी थी कि nobody was giving the headache, nobody was taking the headache. What is that? They don't know, but yes, somebody has found that yes, there are some few things which seems to be very uh, old enough. So इसके बाद से लेकिन किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, रीजन बिंग कि इंडिया वाज गेटिंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो कौन ध्यान देगा? फर्स्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या कर रहे थे उस टाइम पे? ब्रिटिश वर बिजी इन द taking the stake they want to take in India, right? They were ruling. Busy, sorry, 1 second. Yes, yeah. Okay. So British were ruling, busy in taking the land of India under control. And second, Indians, इंडियंस क्या कर रहे थे? सर ये तो इनके जो भी ये एक्शन कर रहे थे, इनके एक्शंस का रिप्लाई करने में ही ये परेशान थे। हमारे उस टाइम पर इंडिया को इतना परेशान किया जा रहा था, इंडिया के लोगों को, कि ब्रिटिशर्स का रिप्लाई करने में, उनके एक्शंस को रिटेलिएट करने में ही इंडियंस बिजी थे। तो हाउ दे कैन गो फॉर द साइंटिफिक थिंग्स? बिकॉज एक बहुत अच्छी कहावत है कि फिलॉसफी तभी पढ़ा जाता है जबकि पेट भरा होता है। तो उस टाइम पर तो इंडिया का पेट भी नहीं भरा था सही से। सो ब्रिटिशर्स ने दे हैव लूटेड a lot, actually the India was looted a lot by the Britishers. So that's how कि 1870 से ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन nobody has given any sort of attention to that thing. So in 1920, Archaeological Survey of India decided to excavate under chairmanship of the John Marshall, right? अगर आप ध्यान दो, so 1820s का टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है सर? यहाँ पर धीरे धीरे काफी लॉज आ चुके थे, आईएनसी बन चुका था, they have started uh, putting the pressure on the British, on the British government in the London itself, कि हमें यहाँ पर स्वराज चाहिए। So lot of leaders were there, right? दादा भाई नेहरू जी थे, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा, so this is not Jawaharlal Nehru, right? This is not our first prime minister. This is his father मोतीलाल नेहरू, right? So गांधी भी उस टाइम पर आ चुके थे, गांधी जी। फोर्थ आप ले लो लाला लाजपत राय, ठीक है। फिफ्थ
Ras Bihari Bose. So a lot of people were there. So they all were putting the pressure with the अभी यहाँ पे जिन्ना का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्ना। और इसके बाद से एक चीज, एक पर्सन को हमें भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव अ हिस्ट्री कि जो भी हमारे साथ अच्छा करता है वी शुड टेक केयर ऑफ गुडविल ऑफ दैट पर्सन। सो एनी बेसेंट, ठीक है, मिसेस एनी बेसेंट। सो शी हैज गिवन वंडरफुल कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन रिवॉल्यूशन। जो भी आईएनसी ने आईएनसी फॉर्म हुआ उस टाइम पर इन्होंने होम रूल का कॉन्सेप्ट दिया था। सो होम रूल हैज created a very wide impact on the mind of the Indian masses. So we cannot negate that contribution from the any basin, right? So अब क्या हुआ कि 1920 तक गवर्नमेंट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स से इंडिया को देने का धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा था। और उसमें बातें चल रही थी कि हमें अब मिलना चाहिए। और धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश हो रहे थे। तो उन्हीं में से एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हुआ। और उस टाइम का काम इसे दिया गया आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी को, राइट। आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी को ये काम दिया गया। सो द हु इज जॉन मार्शल? जॉन मार्शल वाज द पर्सन जिसके गाइडेंस में ये सब चीजें चली, राइट। ही वाज द पर्सन जिसके गाइडेंस में ये एक्सकेवेशन कंप्लीट हुआ। सो लेट्स मूव फॉर द इम्पोर्टेंट साइट्स। Sir, we will be looking a lot of pictures in today's slide, and those pictures will be the very important one. So, important sites में कौन कौन से आते हैं? लेट्स से पहले देख लेते हैं कि कब किसने कौन से शहर खोजे, राइट। तो इन 1921 में 20 से एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ। थोड़ा तो टाइम लगेगा सर। फिर 21 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा जो सिटी है उसको खोज निकाला। 22 में आर डी बनर्जी ने एक्सकेवेटेड मोहनजोदड़ो। ऐसा नहीं कि खोज निकाला, मतलब उन्होंने पूरा खोज कर वो जो साइट था वो क्लियर कर दिया, और जो भी चीजें आनी थी बाहर वो बाहर आ गई, राइट। तो 22 में ये बनर्जी, आर डी बनर्जी जी ने, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को वेल एक्सकेवेट कर दिया। एंड हरप्पन सिटी ऑफ द धोलावीरा इन कच्छ एमंग द, सर ये तो उस टाइम की बात होगी। अभी एक चीज और है जो कि बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये पूछता है, दिस इज अ 40th साइट, राइट। सो हड़प्पन सिटी ऑफ द धोलावीरा, जो धोलावीरा है हड़प्पन का, हड़प्पन इज सभ्यता। और हड़प्पन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं सर, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी, फर्स्ट प्लेस जो कि खोजा गया, इसलिए हड़प्पा हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दिया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट टर्म। व्हाई सो? सर दिस इज व्हाई बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ऑल्दो ये खोजा तो पहले जो इंडस नदी है, सिंधु नदी, उसके अगल बगल खोजा गया, लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि इधर गए काफी दूर तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी अवशेष हैं वो मिले। लाइक गुजरात में यहाँ पर गुजरात में भी मिला लोथल। आप यहाँ पर देखोगे तो काफी इधर सेंट्रल इंडिया में भी थोड़ी सी मिला, नॉर्थ इंडिया में जो यहाँ पर भी चीजें मिली। सो अब बात यह है कि इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट अ बेस्ट टर्म टू point out this civilization. Hadappa telling the Hadappa civilization is more appropriate, right? So you can understand. So this is right Hadappa site, Pakistan. So this is the site जो कि हड़प्पा ये पाकिस्तान में ही मिला था। तो अभी एरिया, पहले तो पूरा ग्रेटर इंडिया का पार्ट था, तो अभी ये पाकिस्तान में जा चुका है। तो ये आप देख सकते हो।
कि ये साइट काफी नीट एंड क्लीन निकल आए हैं. सो दिस सीम्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ factory. If you ask about what kind of factory, so at that time cotton trading, bangle trading, so or bead trading, so all this sort of traditional markets were there. So उन सब चीजों को बनाने के लिए यहाँ पर ये सब हो रहा होगा, क्योंकि घर तो नहीं लगता है. सो आप ये देखो, धोलावीरा इन कच्छ. ये कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में, राइट. गुजरात, गुजरात, गुजरात में कच्छ है, तो वहां का ये आपको साइट मिलेगा. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ गड्ढा सा बना दिया है इन्होंने. ये माइट बी सम सॉर्ट ऑफ वेल. यहाँ पर आप पानी अगर इसमें इकट्ठा हो जाए तो कोई पर्सन यहाँ से उतर कर, स्टेयर्स लगे हुए हैं, पर्सन उतर के जाके यहाँ पर दैट पर्सन कैन टेक द बाथ. सो लेट्स मूव फॉर द सेकेंड. इंडस वैली सिविलाइजेशन मेच्योर फेज, राइट. अगर आप मेच्योर फेज अगर आप ये देख पा रहे हो, व्हाट इज मेच्योर फेज, हमें ये समझने वाली बात है कि मेच्योर फेज का क्या मतलब है. सर व्हाट इज मेच्योर फेज? इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली फेज भी रहा होगा इसका, इमेच्योर फेज, और फिर मेच्योर के बाद से क्या होगा जब ये ढलना स्टार्ट होगा, मतलब लेटर फेज, मतलब लेटर जो होगा, लेटर आईवीसी होंगे, वो होगा. और फिर उसके बाद पोस्ट आईवीसी, यही तो होगा सर. तो ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है सर? बात ऐसी है, आप बताओ कि ये हड़प्पा का आईवीसी या फिर हड़प्पा सभ्यता जो सिविलाइजेशन है, इसको डिस्कस किया जाता है यहाँ से यहाँ तक. सो इज इट पॉसिबल दैट पीपल हैव जस्ट incarnated all over the area once? No, it is not possible. कैसे आया होगा यहाँ पर? लेट्स से यहाँ पर इन्होंने कोई पर्सन हुए, जो भी bunch of people have collected और they have started living, और उनमें से किसी ने कुछ डिस्कवरी करी, किसी ने कुछ इजाद किया उसके बाद से. बट ऑब्वियस है कि बच्चे हुए, बेबीज हुए, और बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, और ये बढ़ते बढ़ते सर ये यहाँ से यहाँ तक काफी दूर तक ये फैल गया. तो ऐसा ही तो हुआ होगा, लेकिन देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. सो दैट स्टार्टिंग पॉइंट, so the time period in which that starting point will be discussed, that will be the immature industrial civilization. So let me first, right, यहाँ पर तो जैसा हम देख पा रहे हैं, प्री हड़प्पन, पहले प्री हड़प्पन जान लेते हैं. प्री हड़प्पन क्या था? हम लोगों ने ये देखा था, समझा था कि ये नियोलिथिक फेज का स्टार्टिंग लास्ट रहेगा. और नियोलिथिक पीरियड बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द साइट्स लाइक मेहरगढ़, which shows evidence of the agriculture development, right. तो नियोलिथिक में जो था वहां पर एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो चुका था. तो और यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो स्टोन, जो भी टूल्स थे, वो टूल्स शार्पन होना स्टार्ट हो गया था. अब आते हैं अर्ली हड़प्पन. दिस इज काइंड ऑफ इमेच्योर आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज अर्ली हड़प्पन. तो ये कब से कब है सर? ये 5500 बीसी से 2800 बीसी तक है ये. ट्रेड firmly established with Egypt, मेसोपोटामिया एंड पॉसिबली चाइना. चाइना का पॉसिबली है क्योंकि ये बगल में है सर, यहाँ पर तो वही होगा, और ये सब तो तब भी दूर है, राइट. तो पोर्ट्स, डॉक्स, वेयर हाउसेस वर बिल्ट नियर waterways by communities living in small villages, राइट. सो ये सब चीजें बने, और किस टाइम में बने? 5500 से लेकर 2800 बीसी तक. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सर ये यहाँ पर ये अर्ली हड़प्पन एज है, यहाँ उसके बाद है मेच्योर. तो अब हमें जो हमारा मेजर इम्पोर्टेंट है, जो वो मेच्योर हड़प्पन एज है, क्योंकि सर जो लेट्स से इंडिया इज नोन फॉर डाइवर्सिटी. सो इफ देयर वुड बी नो डाइवर्सिटी इन इंडिया, like then will India be well known for the same thing
for what we know today? No. So there might be some other specifications for which India might be known for, but the diversity will be absent over there at that time. So the mature Harappan phase, which Harappa we know, the urban Harappan civilization, the urban civilization, urban was the mature Harappan period, right? The early Harappan people cannot develop abruptly the whole city, right? So they have to learn how to develop a city. Then after they will go for the developing the city. So in the construction of the great cities, widespread the urbanization, Harappan and Mohenjo-daro are both flourishing. कहाँ से? 26 BC तक, BC से, ठीक है? The other sites, cities such as Jenirwala, Lothal and dholavira are built according to the same model. सर तो आप ध्यान दोगे कि अभी के जो cities हैं, we are still lagging in that aspect. One second. So we are still lagging in that aspect कि सर हमारे cities अभी भी unorganized हैं. We have to go for the metro cities or like Chandigarh, Bombay. So there are a few areas in which the cities are well organized. So उसे हम लोग पॉश एरिया बोल देते हैं. लेकिन यहाँ पर की जो cities थी ये काफी जो वेल प्लान्ड थी और जिसकी वजह से जो सेम मॉडल ये फॉलो करते थे काफी अर्बन थे, डेवलप्ड थे. सो हमें ये समझना पड़ेगा. सो लेट्स गेट बैक टू अवर ओरिजिनल. अच्छा, इसको भी कवर कर लेते हैं एक बार. सो लेट हड़प्पन, जो अब भाई आपको बताया कि मेच्योर हड़प्पन में, तो लेट हड़प्पन भी देखना पड़ेगा. तो 1800 तक लगभग माना जाता है, 1800 से 1900. तो जो मेच्योर आता है उसके बाद का जो सिविलाइजेशन रहेगा वो लेट हड़प्पन हम बोल लेंगे, 1500 तक का. तो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन coincides with the wave of migration of आर्यन. जैसा कि आपको पता है कि आर्यन ये 1500 BC से आर्यन का आगमन हो चुका था, ये माना जाता है. तो अब ये बोलता है कि माइन्यूटली कौन साइड करता है ये आर्यन के माइग्रेशन, जो आर्यन यहाँ पर आए इंडिया में, उनके माइग्रेशन से कौन साइड करता है. सो दिस विल लीड टू अ थ्योरी ऑफ डाउनफॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. वी विल डिस्कस फर्दर. तभी ये देखते हैं. पीपल फ्रॉम द नॉर्थ, मोस्टली लाइकली the Iranian plateau. Physical evidence suggests that the climate changes caused the flooding, drought and famine. So अभी क्या है कि उसमें कई theories हैं. तो अब फिजिकल चेंजेस जो है उससे, लेकिन साइंटिफिकली जो अभी तक प्रूफ हो पाया है, समझ पाए हैं साइंटिस्ट, वो ये है कि ये कोई फिजिकल चेंजेस की वजह से ये सभ्यता धूमिल हुई, खत्म हुई. So loss of trade relations with Egypt has also suggested the एज ए कंट्रीब्यूटिंग कॉज. सो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यता से सजेस्ट ये होता है कि वहां से ट्रेड इस समय पर लेट हड़प्पन में वो कम हो गए थे या फिर खत्म हो गए थे, राइट. सो पोस्ट हड़प्पन, सो इस टाइम पर तो ये खत्म ही हुआ था. सो ये 1500 से 600 BC तक ये सिटीज जो थे अबंडेंट हो चुके थे एंड पीपल हैव मूव्ड साउथ. द civilization has already fallen by the time Cyrus II the Great invade India in 530 BC. So जो Cyrus II was the ruler जिसने कब इंडिया पर इन्वेड किया, 530 BC में. सो इस टाइम तक तो वो ऑलरेडी हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो चुका था और वैदिक पीरियड स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पर. यहाँ पर हम लोग वैदिक पीरियड जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग वी विल डिस्कस दैट all this time period. But let's move for the our main aspect of the study for today's lecture. So now, so sir, one thing I would like to notify you that it might seem that although these are a very good number of sites, but still this is very less number of sites. There are a lot of much more sites
already have been excavated since now or till now, and still it is continuing and counting. तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतने साइट्स मिल चुके हैं। तो ये इंडिया का पूरा भरा हुआ है ये साइट से। बहुत सारे साइट्स अभी खोजी जा चुकी हैं। तो हमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमें तो देखना पड़ेगा कि कौन सी साइट्स कहाँ पर, और हमें याद भी करना पड़ेगा। और इसमें भी याद कैसे करना है कि सर इसका अगर कभी कोई पूछ देता है कि लेट्स से बालाकोट और अलादीनो में कौन सा लेफ्ट में है, कौन सा राइट, लेफ्ट राइट, इट मीन्स आई मीन टू से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो ऐसा कभी कोई पूछ लेता है कि इफ वी मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, विच विल कम फर्स्ट एंड विच विल सेकेंड एंड विच लेटर ऑन। सो कौन पहले बाद में आता जाएगा, तो वो पूछता है। तो हमें पता रहना चाहिए कि सुक्ता को जो है, पहले सुक्ता, ये पहले यहाँ से आता है, सुक्ता गेंडोर। दिस इज, देखिए जो भी मैं नाम लूंगा, इट मीन्स यू हैव टू टेक कंसिडर दैट पार्ट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं एक काम करता हूँ, नंबर भी लिख देता हूँ। सुक्ता गेंडोर इम्पोर्टेंट वन, सुक्ता को याद रखिए, बालाकोट तीसरा याद रखिए, अलादीनो चौथा याद रखिए, राइट। धोलावेरा, ये तो सभी ने सुना ही होगा। एग्जाम के अलावा भी लोग आपसे कभी कभी डिस्कशन करते हैं लोग, धोलावेरा याद रखिए। और उसके बाद से लोथल 6 याद रखिए, मोहनजोदाड़ो नॉट ए वेरी दैट थिंग दैट इज आई शुड टेल यू, में रखो, देखो जी सभी को याद ही रहता है साथ। और इसके अलावा आप आइए, 8 याद रखिए, कालीबंगन 9 याद रखिए। और राखीगढ़ी, दिस इज वेरी बिगेस्ट एक्सकेवेशन हैव बीन लेटली डन ओवर देयर। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। 10 याद रखिए। और 11 याद रखिए, रोपर 12, ठीक है। तो एक्चुअली सर, मतलब याद तो आप चाहो तो एज मच यू कैन रिमेम्बर दैट, दैट इज वेरी क्वाइट गुड, बट यस आप इतने साइट याद रख सकते हो। सो दिस विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम्स। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो किनारे के ये जगह है, यहाँ पर कुछ सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज माइट बी प्रेजेंट ओवर देयर एट दैट टाइम पीरियड, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। और जो अंदर के यहाँ पर सिटीज रहेंगे, वहाँ की कुछ अपनी व्यवस्था अलग रही होगी कुछ मायनों में। लाइक जो लोथल था, लोथल वाज कंसिडर्ड टू बी द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर सर, यहाँ शिप्स बनाए बनाए जाते थे, शिप्स जो आप अभी देखते होगे कोच्चि में। अब हमारे इंडस इंडियन नेवी के शिप्स बनाए जाते हैं, तो अभी उस टाइम पे यहाँ पर बनाया जाता था। और अभी भी गुजरात के जो भी पोर्ट्स हैं, मुद्रा पोर्ट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट। और इसके अलावा अभी भी बात चल रहा है, अभी पोर्ट और भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो क्योंकि जो गहरे पोर्ट्स हैं वो अभी भी मिसिंग है इंडियन सर्किट में। बिकॉज अभी भी इंटरनेशनल जो शिप्स हैं, वो जो बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं, वो अभी भी आते हैं और अभी इंडिया में नहीं रुक पा रहे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर डेवलपिंग एंड वी हैव अ प्लान, इंडिया हैव अ प्लान। And yes, very soon we will be achieving that plan। और यहाँ पर मतलब जो किनारे की ये एरियाज है, लोथल इज वेरी प्रोमिनेंट इन दैट एस्पेक्ट कि यहाँ पर हम डॉकयार्ड की व्यवस्था हम देख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इमेज, दिस इज नॉट अ वेरी रियल इमेज, you can अंडरस्टैंड इजीली कि ये रियल इमेज तो नहीं है। ये
क्या है कि उस टाइम के अवशेष जो भी मिले हुए हैं, रिमेनेंट्स, उन्हें देखते हुए ये अंदाजा लगाया गया कि किस तरीके की शहर या नगरी व्यवस्था रहा होगा, और उस चित्रकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चमकाया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ इन्होंने पानी को रोक कर यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है। यहाँ से ये माल की ढुलाई चल रही है, और नाव पर बैठकर ये लाद कर इसको फिर बाहर लेके जाते हैं, और बाहर लेके जाकर जहां पर भी इन्हें ट्रेड करना है वहां पर ये लेके जाते थे। तो दे हैव बिल्ट देयर ओन वेयर हाउसेस, और इस तरीके की व्यवस्था करी गई होगी लोथल में। सो यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। दिस इज द रियल इमेज डॉकयार्ड ऑफ लोथल, राइट? अब आप देखो, दिस इज द रियल इमेज एंड दिस इज द पिक्टोरियल वन ओनली। सो आप ये देखो कि दिस इज लोथल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These images are also the Lothal। So इनमें से कोई वेयर हाउस हो सकता है पॉसिबली, कुछ उस टाइम के लोगों के रहने के लिए घर हो सकते हैं, होम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड सेकंड कालीबंगन। तो कालीबंगन से सील्स वगैरह बहुत ही मिली हैं। तो ये सील्स आप देख पा रहे हो कि सील्स में कौन कौन से जानवर बने हुए हैं। सो दिस इज डियर, ये कुछ बारहसिंगा है, और साथ में आप ये देखो हॉर्न भी, जो इसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन ये कुछ राइनोसोरस से भी मिलता है, आप ये देख पा रहे हो। लेकिन राइनोसोरस का चूंकि ये सींग ऐसा बगल में भी नहीं रहता, तो इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन आप देख लो कि ऐसा कुछ ये एनिमल यहाँ बना हुआ है। सो दिस सीम्स मोर रिजेम्बल्स विद द राइनोसोरस। और यहाँ पर तो ये कुछ गाय या फिर बैल लग रहा है, और दिस वन इज एलिफेंट, राइट? सो इस तरीके से है। और ये आप देखो कालीबंगन का ये यहाँ पे कुछ ये नाली नाली बना हुआ है, ये आप अगर देख पा रहे हो तो। इन्होंने घर पर जल निकासी बहुत ही अच्छा इन्होंने वो बनाया हुआ है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इनके घर जो थे, ये 2 मंजिला के भी घर ही बनाते थे लोग। तो दिस इज वेरी यूनिक फीचर विच यू कैन सी इन द industrial civilization. So there are these are the few more remnants you can see the artifacts. So this artifact is very famous. ये priest इसको माना जाता है। And second one was dancing girl. I think that dancing girl image is not considered in this PPT, but well, we will show you in some other slides। बट अभी आप ये पृष्ठ का देख लो कि पृष्ठ का ये, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये पेट्रियोकल और मेट्रियोकल दोनों दोनों ही जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये दोनों ही बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिबेट कि सोसाइटियों की पेट्रियोकल थी या मेट्रियोकल थी। वेल बट अभी तो हम ये समझ सकते हैं कि ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ दैट टाइम, जिसको ये या तो पूजा करते थे या फिर सोसाइटी का कोई एक लीडर लीडर तरीका कोई इंसान रहा होगा। तो ये हम समझ सकते हैं इसको देखकर। सो दिस इज द पॉटरी, काइंड ऑफ पॉटरी। आप देखो कि किस तरीके की पॉटरी उस टाइम पर भी दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ पॉटरी। सो दिस इज मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो इज स्टिल इन पाकिस्तान। और अभी आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से अभी रिमिनेंट्स बचे हुए हैं। और ये काफी हद तक ये अ, उजड़ा हुआ ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये पुरानी सभ्यता का ये मकान है, घर था। तो अभी आप इसे नहीं पा सकते, लेकिन हाँ आप ये जरूर देख सकते हो कि द साइज ऑफ रूम्स
will be the very similar one, और उसके बाद से सभी रूम में बाथरूम की संभावना लगती है कि सभी घरों में बाथरूम वर प्रेजेंट ओवर देयर। और उसके बाद से आप ईंटों की साइज को अगर आप देखो तो उन्हें एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीकों से काम करने के लिए ये समझा जा सकता है कि उस टाइम पर उनके सेंसेस से डेवलप हो चुके थे, क्योंकि द स्टैंडर्ड ऑफ ईट वाज वेरी यूनिक एंड सेम, जो कि हर जगह ये एक ही तरीके के स्टैंडर्ड के ईट मिलते थे। सो दिस इज वन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग which we have to note down. So great bath of मोहनजोदारो, सर दिस इज अ थिंग जो कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि मोहनजोदारो में ग्रेट बात, तो ये किस किस कामों के लिए काम होता रहा होगा। पहला, ये कोई सेक्रेड, ठीक है, सेक्रेड सेक्रेड बात के लिए ये यूज हो सकता है, जो कि सबसे अधिक पॉसिबिलिटी मानी जाती है। दूसरा, ये एक कोई एक पब्लिक, ये एक कोई पब्लिक गैदरिंग या फिर उस तरीका चीजों के लिए, लेट्स से कोई फेस्टिवल आपने मना रहे हैं, पब्लिक फेस्ट, तो उस टाइम पर ये यूज हो सकता है। तीसरा, अ, जिसकी इन दोनों की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है। तीसरा, सम सॉर्ट ऑफ जो भी प्रोमिनेंट पर्सन है, तो ये उसके उस पर्सन के लिए ये बनाया जा सकता है। तो ये तीसरे पर ये है, लेकिन पहला ये सेक्रेड माना जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा की ये साइट्स है, तो इसमें से अगर आप ध्यान दो तो ये साइट्स में यहाँ पर ये वेल मिला है, कुआं, राइट। और ये सम सॉर्ट ऑफ कोई स्ट्रक्चर मिला है, ये भी आप इस ये तो अजीब सा स्ट्रक्चर, ये नहीं पता है अभी तक कि ये क्या है, लेकिन हाँ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ये मिला हुआ है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो धोलावीरा में। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा का ये सिटाडेल जो बोला जाता है, सिटाडेल। सो ये रहा ग्रेट बात आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नो। सो दिस चार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो उनको क्रेडिट जाता है इस चार्ट का, और इसको ये थोड़ा सा क्लियर था, इस वजह से मैंने इसको ले लिया, और मुझे लगा कि आप लोग को समझने में अच्छा रहेगा। और द साइड्स were depicted on this map, so this is quite clear। और ये पूरी जो पीपीटी है, पीडीएफ है, आई विल पुट the link in the description, you can download from over there। So this whole PDF will be very helpful to you, so I would recommend to download। And if anywhere you want to consider explanation, so you can just get back to the video and check that out। so यहाँ पे मैंने कुछ मैप्स लगाए हुए हैं। according to me these maps will develop you a uh, more sense to the geometry, to the geography of the Indian map। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ दूर से तो ये सिंपल सा एक सीधा सा लाइन लगता है, लेकिन आप ध्यान दो तो ये आप देखो कि यहाँ पर ये ऐसे कट 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 टाइप का लगा हुआ है, यहाँ पर सॉर्ट ऑफ आइलैंड, यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए हैं। व्हाई दिस इज बिकॉज दिस आर काइंड ऑफ डेल्टा। इसको आप डेल्टा जैसा तरीका समझ सकते हैं कि ये पूरी छोटी छोटी जगह है, जहाँ पर यहाँ पर भी लैंड मास है, और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा। और ये हर जगह ही है ऐसा, ठीक है। तो लोथल आप देख पा रहे हो कि लोथल यहाँ पर, लेट मी, या, राइट, दिस इज लोथल। तो ये कोने पर यहाँ पर लोथल ये इन्होंने बसाया हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया, टाइम स्पेन। Yeah, this one thing I have taken from the history. I found this very useful. So for you guys, I have taken this, and all credit for this mind map goes to the history. You can just check it out.
So everything about the Indus Valley civilization is depicted in this mind map. So you can just download this PDF and check this out. Now we will move for the second another slide. This is the same thing with just another map. So whichever map suits you well, you can just go and check that out. So now अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों पर, जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि साइट का नाम रहेगा एक्सकेवेटेड बाई, किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया, लोकेशन क्या है उसकी, और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है उस साइट्स की. So these are gonna be very important because important findings are going to be discussed in the exam, and you have to take care of these things. Sorry. So in 1921, we all know Hadappa was excavated. That's why Hadappa civilization. और कहाँ पर है ये? बैंक ऑफ रिवर रावी. तो मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, तो जो कौन सा पंजाब है? ये पाकिस्तान के पंजाब में, ये रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है. ठीक है, इसको हम एक बार हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं. सो दैट विल बी बेटर. या सर ये देखो, दिस इज रावी नदी. ठीक है, सो हड़प्पा यहाँ पर है. सो यहीं पर उस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है. इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ. सो मोंटोगोमरी, मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. तो यहाँ पर ये लोकेटेड है, और इसके फाइंडिंग्स हम जल्दी से देख लेते हैं. सो 2 rows of 6 granaries. ग्रेनरीज मतलब वेयर हाउस जहाँ पर ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा किए जाते हैं. वर्कमैन क्वार्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीथल चीज है कि आप इस टाइम पर अर्बन इंडस्ट्री में ऐसी चीज आपने डेवलप करा कि इंडस्ट्री डेवलप किया और साथ में रहने के लिए घर भी बनाया, जो कि बहुत बाद में इंडिया में टाटाज, टाटा के जो जमशेदपुर बसा हुआ है, तो वहां पर उन्होंने बहुत लेटली स्टार्ट किया, और देन नाउ दैट्स वाई उन्होंने इतना डेवलप कर पाए वो टाटा जमशेदपुर. तो अभी 2 sandstone statues depicting the human autonomy. सो ह्यूमन एटोनमी को सैंडस्टोन स्टैचू मिले. डॉग अटैकिंग डियर, ये कुछ सॉर्ट ऑफ पेंटिंग मिले. ठीक है, तो लिटिल लिटिल बुलॉक कॉट, इकाज. ठीक है, तो ये छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मतलब खिलौने टाइप के ये मिले. ये आपके जो मिट्टी से बनाया हुआ या फिर है ना, तो इसको पका दिया तो इस टाइप की चीजें मिली. सो ओनली साइड विच yielded द एविडेंस ऑफ द कॉफिन बुरियल. सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. ये हड़प्पा में ये कॉफिन बुरियल मिला, जो कि इसके अलग अलग आप जगह देखोगे, किस अलग अलग तरीके के बुरियल्स. बुरियल मतलब दफनाना, ठीक, बुरियल. तो अलग अलग तरीके से दफनाया गया, लेकिन यहाँ पर ये अकेला जगह है जहाँ पर कुछ कॉफिन मतलब कि आप समझो जो मुस्लिमों में तो नहीं, ईसाइयों में आप देखते हो कि वो दफनाया जाता है कॉफिन में, तो उससे देख सकते हो. तो ठीक है, ऋग्वेदा में भी आपका हरि यूपिया का वर्णन है. आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पर आते हैं. तो R D बनर्जी, राखाल दास बनर्जी जी ने 22 में खोजा. ये कहाँ पर है? ये भी इंडस रिवर के मुहाने पर है, उसके बैंक पर, उसके किनारे पर. और लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान में ये वो है, डेवलप्ड है. तो ये क्या है? ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ यहाँ पर मिला. लार्ज गैलरी मिली. पीस ऑफ वोवन कॉटन मिला. यहाँ पर कॉटन मिला, तो यहाँ पर कॉटन की इंडस्ट्री हो सकती है. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली यहाँ पर. शिला पशुपति महादेव. सो महादेव का वो सील मिला. उसमें एक योगी टाइप का फिगर है, और उसके चारों तरफ कुछ एनिमल्स आर डांसिंग. सो पशुपति माना जाता है कि वो शिव भगवान के वो भक्त थे.
और सेटेलाइट स्टेच्यू ऑफ ए bearded मैन, सॉरी सेटेलाइट, आई जस्ट टोल्ड सेटेलाइट, सो स्टीएटाइट। सो ये जो अभी हमने पृष्ठ की स्टेच्यू हमने डिस्कस करा वो है। तो एविडेंस ऑफ द हॉर्स फॉर सुपरफिशियल लेवल। सो हॉर्स का जो हमने देखा कि एक हॉर्स का जैसे यूनिकॉर्न की बात होती है, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ हॉर्स यू कैन रिजेंबल समवेयर बिटवीन द डियर एंड हॉर्स, एंड हैविंग द sting horn, horn like a rhinoceros, rhinoceros, ठीक है। सो यूनिकॉर्न की समझ या फिर उस तरह के कुछ सुपरफिशियल हॉर्स का वहां पर उनके सेंसेस में कुछ मेंटेन है। तो क्या पता उस टाइम पे कुछ ऐसे जानवर रहते हो जो कि अभी विलुप्त हो चुके हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबिलिटी सर, बिकॉज इतने ढेर सारे जानवर विलुप्त हो गए। अभी आपके देखते देखते चीता विलुप्त होने को है। तो ये मैटर है। तो अभी देखते हैं ब्रॉन्ज बुफेलो, ठीक है, बुफेलो की ब्रॉन्ज मूर्ति मिली। और इसके बाद मिला प्रोबेबिलिटी डिक्लाइन ड्यू टू द फ्लडिंग। माना जाता है कि ये फ्लड के कारण ये डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ये एकदम नदी से किनारे सटा हुआ है। सो अब आगे बढ़ते हैं, अनदर वन। सुख्ता के इंडोर में क्या मिला सर? ये 1929 में ये खोजा गया। और साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस में, बलूचिस्तान आप जानते हो कि ये पाकिस्तान का ही एक एरिया है, सुख्ता गंडोर। तो वहां से पाकिस्तान में दस्त रिवर में खोजा गया, और उसके पास बगल में ए ट्रेड पॉइंट बिटवीन द हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन का झूलता भाग वॉज, आई गेस अभी भी है, इज अमंग द एट एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये उसी बेबीलोन की बात हो रही है, 1 सेकेंड, नो, ओके। सो ये उसी बेबीलोन की बात हो रही है। सो ठीक है। बीड, अब आते हैं चाणूदारों में क्या क्या मिला। ये बीड मेकिंग शॉप्स, ठीक है, वो मोतियां यहाँ बनाई जाती थी, इंक पॉट, फुटप्रिंट ऑफ डॉग कास्टिंग और कैट, यहाँ पर उसके कुछ फुटप्रिंट मिले। और ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि देर आर लॉट ऑफ, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। मान लो कालीबंगन का आप देख लेते हैं कि फायर अल्टार, कैमल बोन्स, वुडन प्लाउ। वुडन प्लाउ भी यहाँ पे मिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है कि उन्होंने खेती करने के लिए प्लाऊ भी बना लिया था कालीबंगन में। और ये एक खेती करने का जगह हो सकता है कि जहाँ पर खेती बहुत ज्यादा हो रही हो। तो लोथल, तो हमने ये अभी डिस्कस किया था, डॉकयार्ड, ठीक है। फर्स्ट मैनमेड पोर्ट है। राइस हस्क, राइस सर, राइस हर जगह नहीं पाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस बहुत ही लिमिटेड जगह लोथल में पाया गया, हर जगह नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन है। सो चेस, उस टाइम पर चेस भी अवेलेबल था, खेलते थे लोग। तो बोनसार, हॉर्सेस, बीट। सर ये एक ऐसी चीज है जो कि अभी भी डिस्प्यूट में है कि हॉर्स उस टाइम पर थे या नहीं थे, क्योंकि दिस इज इन डिस्प्यूट। ये अभी के लिए निगेट करेंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो आया हुआ है कि हॉर्सेस वर absent, ठीक है, हॉर्सेस नहीं थे उस टाइम पर। ये आर्यंस हॉर्सेस अपने साथ लेकर आए। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि उस टाइम की पॉलिटी कैसी थी। दो आईबीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी को हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, अगर हम ये देखना चाहें। One second, okay. So we are going to check
So no, okay. So but we have selected some other. Okay, दूसरा कलर कुछ select नहीं हो रहा. There is some sort of problem, but okay, we are going to use this color only. It doesn't matter. So from the town planning of the IVC, इंडस वैली के टाउन प्लानिंग से हम समझ सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो है नहीं, आप समझ रहे हो. जो भी कुछ रिटर्न में है वो चीजें समझ नहीं पा सकते कहाँ रिटर्न में है. वो सील्स वगैरह में. ठीक है, सील्स वगैरह में कुछ ऐसे जो स्टोन्स है वहां पर उकेरा गया है. तो वो सब हम अभी भी डिसाइफर्ड नहीं है, अनडिसाइफर्ड. सो दिस इज द केस विद द IVC. whereas मेसोपोटामिया में जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो मिल गए, और उससे क्या हुआ है कि वहाँ की जो भी चीजें हैं डिसाइफर हो चुकी हैं. तो उस तरह का कोई चीज अभी तक IVC में नहीं मिला है, और जिसकी वजह से अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया है कि इनकी लैंग्वेज को समझा सके और मोर नॉलेज वहां से ग्रैब किया जा सके, उनको समझा सके. तो अभी ये प्रॉब्लम है इसके साथ. सो इट सीम्स दैट देयर वाज सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडस वैली. ये समझा सकते हैं कि वहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम था इंडस वैली में. ये क्यों? क्योंकि सर एक टाउन जो है, टाउन में ये सेम सेम तरीके के लोग नहीं थे. क्योंकि सर कुछ घर तो सिमिलर थे, और कुछ कुछ और घर थे जो कि बाकी घरों से थोड़े से डिफरेंट थे, और थोड़े बड़े थे, ग्रैंड थे. तो अब ये समझा सकता है कि यहाँ पर कुछ तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, बट दीज वर नॉट द पैलेस. तो हम ये भी हम समझ पा रहे हैं कि ये पैलेस तो नहीं थे. ये पैलेस मतलब महल तो नहीं थे ये. इनकी कुछ अलग सी केमिस्ट्री थी उनकी सोसाइटी में. सो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग इन सिटाडेल. अभी मैं आपको वहां पर दिखाया था इमेज में, सिटाडेल में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग उसे माना जाता है. The majority of historians conclude that Indus Valley was ruled by the rich merchants and traders, and they rejected the system monarchy. तो यहाँ पर कोई राजपाट नहीं चलता था, ट्रेडर्स ही चलाते थे. So इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो सर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो स्टैंडर्डाइज चीज़ों को यूज करने में माहिर थे. तो ये वेट्स और मेजर स्टैंडर्डाइज यूज करते थे. एविडेंस ऑफ ट्रेड मिलते हैं मेसोपोटामिया और बाकी तमाम जगहों से, पर्सियन गल्फ से. कैसे करते थे आपको पता है? नाव से करते थे. यहाँ से लोथल से निकलते थे ये पे अपने वेयर हाउसेस से सामान लेकर, वहां से वो लेकर आते थे. क्या लेकर आते थे फिर वहां से? ढेरों प्रीसियस मेटल्स, है ना, कॉइन्स, सेमी प्रीसियस स्टोन्स. तो ये सब चीजें वहां से ये लेकर आते थे. तो यूज ऑफ सील, ये सील का यूज करते थे, अभी हम लोग डिस्कस किया था. तो evidence of specialization, evidence of different sites and regions touching different crafts from industry. अभी मैंने आपको बताया था कि लोथल का कुछ अलग तरीका रहेगा इंडस्ट्री को डेवलप होने में, और हड़प्पा का अलग, कालीबंगन का अलग. क्योंकि सर ये सभी की जो ज्योग्राफी है वो डिफरेंट है, तो सभी का सेम नहीं हो सकता. ठीक है, तो उसी तरीके से पॉटरी और टेक्सटाइल सभी कुछ उसी हिसाब से वेरी करेंगे. तो इकोनॉमी अगर हम बात करें, तो since there were no evidence of palace, or so student considers IVC was run by the rich merchants. सभी हम लोगों ने देख ही लिया कि कोई पैलेस मिला नहीं. सो इस वजह से रिच मर्चेंट ही चला रहे होंगे, ऐसा अंदाज हम लोग लगा सकते हैं. और कल्चर में कौन कौन से सीरियल्स मिले? वीट, बर्ली, मिलेट, पी, सैमसन, सॉरी सीसमन, सीसमम, राई, मेलन्स. सो ये सब चीजें उस टाइप पर मिला. और लेटर एजेस में कॉटन भी यहाँ पर मिला. और जैसे सिंधु नदी के किनारे चूंकि हम लोग की सभ्यता सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसलिए अ, इसे सिंडोन कहा जाता था. कॉटन को सिंडोन बोला जाता था, सिंधु को जगह सिंडोन बोला जाता था. तो ये कहाँ बोला जाता था सर? ये मेसोपोटामिया में. ये ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया में. क्योंकि सर वहाँ उस टाइम पर रिटर्न
मिलेगा तब तो समझेंगे कि क्या बोला था, कहाँ बोला था। तो मेसोपोटामिया में चूंकि वहाँ पर रिटर्न चीजें डिसाइफर्ड हो चुकी हैं, तो वहाँ पर ये यहाँ का मिलता है कि यहाँ से मतलब इकोनॉमी में। और आगे बढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ से ट्रेड इन्होंने इस्टेब्लिश किया, कहाँ कहाँ से किया। अफगान, मेसोपोटामिया, सुमेर, डिलमम, ओमान, मेगन, इजिप्ट, इन सब जगहों से इन्होंने किया। और ये हमने बताया कि कॉपर, गोल्ड और तमाम तरीके की चीजें वो वहां से लेकर आते थे। और सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अगर हवाले से ये देखा जाए, तो कोई एक तुरंत इमीडिएट आंसर नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ अथॉरिटी तो था थोड़ा सा। और द एक्सट्रीमली यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इज एविडेंस इन द पॉटरी। जो 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 सभी के लोग थे उनके सभी यूनिफॉर्म थे, लाइक ये भी जो कास्ट सिस्टम है, तो इस टाइप की कोई चीजें उस टाइम पर अवेलेबल या फिर मेंटेन्ड नहीं थी। तो इससे हम समझ सकते हैं ये सभी चीजें नॉर्मल थी और काफी हारमोनियस सोसाइटी थी। ठीक है। तो ब्रिक्स जो थे स्टैंडर्डाइज थे, वेट्स थे इनके पास। ठीक है। तो अब चूंकि कोई भी स्टैंडर्ड थोपा जा रहा है सोसाइटी पर, अगर चल रहा है, तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी, तभी तो वो यह गवर्नेंस, तभी तो ये सब चीजें पॉसिबल हो पाए। इस वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि वहां पर हम कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो था। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तीन तरीके के वो दिया जाता है कि थियरी, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये खत्म हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट वाज सिंगल स्टेट पासिंग ऑल द कम्युनिटी सिविलाइजेशन given the similar artifacts, evidence of planned settlements and standardized ratio of brick size and the apparent establishment of the settlements near the sources of raw material। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड theory posits that there was no single ruler। यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि कोई सिंगल रूलर था ही नहीं, बट नंबर ऑफ देम रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द अर्बन सेंटर्स इंक्लूडिंग द मोहनजोदड़ो। मतलब जैसे कि गांव के बुढ़े लोग होते हैं जो कि जिनको इंटेलेक्चुअल माना जाता है, और वो जो बोलते हैं, जैसे कि पंच होते हैं गांव में, कभी आपने देखा होगा पंच, पंचायत जिससे बना हुआ है। ठीक है, पंच। तो उस टाइप की भी व्यवस्था को समझा सकता, बोला जाता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। और फाइनली और क्या हो सकता है कि experts have theories that Indus Valley civilization had no rulers, as we understand the concept of the ruler today, with everyone enjoying the equal status। कभी कभी ये भी माना जाता है कि उस टाइम पर कोई रूलर का कॉन्सेप्ट था भी नहीं। उस टाइम में सभी लोग अपना अपना ही कर रहे थे तब तक। और ये सब थियरीज हैं। अब फॉर द गॉड सेक, जब भी ये डिसाइवर होगा यहाँ की लिपि, तो ये सब चीजें सामने आ जाएंगी कि एग्जैक्ट क्या था। सो रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी, ये अब देख लेते हैं। तो हड़प्पन रिलीजन रिमेन्स द टॉपिक ऑफ द स्पेकुलेशन। ये अभी भी स्पेकुलेशन में है, क्योंकि इंडिया में अभी जो वैदिक सभ्यता चल रही है, तो ये माना जाता है क्योंकि वहां पर भी योगी फिगर मिला हुआ है, पशुपतिनाथ का सील। तो इससे हम जानना चाहेंगे कि उस टाइम पर रिलीजन किस तरह की रिलीजन प्रैक्टिसेस थी। तो ये माना जाता है कि मदर गॉडेस वाज अ सिंबॉलिक सिंबल्ड फर्टिलिटी। तो भाई जहाँ से इंसान आया है, तो उसे पूजना उन्होंने स्टार्ट किया, और मदर गॉडेस को उन्होंने ये अपनी देती चुना। So, in contrast to the Egyptian and Mesopotamian civilization, Indus Valley don't seem to have the lacked of the temples। So, यहाँ पर temples और places ऐसा कोई मस्जिद या फिर टेम्पल इस टाइप की कोई चीजें नहीं थी जहाँ पे जाकर पूजा करा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि मेसोपोटामिया में वहाँ पहले से मेंटेन थे। So, some Indus Valley seals show the swastika symbol, which include the in later in Indian religion, including the Hinduism, Buddhism और Jainism। तो स्वास्तिका सिंबल आप जानते हैं। ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज में मिला है। तो तीन तरीके के बरियल्स मैंने अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे। बरियल मतलब कि एक तो पूरा ही उन्हें दफना दिया गया, ठीक है, जमीन में। और दूसरा फ्रैक्शनल, तो कुछ जलाया गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद दफनाया गया। और कुछ में पॉट में, राइट, और पॉट
कोई एक बर्तन बनाया गया बड़ा सा और उसमें उन्होंने उसको डाल के दफना दिया. So this kind of thing was also sustained at that time, prevailing at that time society. So they must be believing after life another word concept. So उस टाइम के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे, इसलिए तो ये करते थे. तो क्या करते थे उस टाइम, मतलब कि ये जो जब दफनाते थे लोगों को, तो उस टाइम पर लोगों के साथ उनकी चीजें भी उसमें अटैच करके तब दफनाया जाता था. तो डिक्लाइन ऑफ आईवीसी जब ये समझा जाता था, तो इसमें कई थीरीज आती हैं. तो उसमें से एक थीरी ये भी आता है कि आर्यन ने आर्यन इन्वेड किए. ठीक है. दूसरा भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक. ठीक है. ठीक है. तीसरा हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो, फ्लड. और राइट. फोर्थ, some sort of disease. TSC. फिफ्थ, डिजीज हो गया. और इन्वेजन, या फिर आपस में ही लड़ गए हो, है ना, पर्सनल. या फिर यूके से इंट्रा इंट्रा सिविलाइजेशन फाइट. तो तमाम तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो एट लास्ट माना जाता है वो यही माना जाता है कि या तो सूखा पड़ गया होगा, फेमाइन, है ना, सूखा पड़ गया. तो ये सब चीजें, ड्रॉट. सिक्स लिख दो भाई. तो कई चीजें हैं जिसमें से ये माना जाता है कि प्राकृतिक जो इवेंट्स थे, इन्हीं में से कुछ घटित होने से ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो, और इस तरीके से एक ऐसी अर्बन सभ्यता का अंत हुआ जो कि हम सभी चाहेंगे कि वो मेंटेन रहता. तो अभी हम लोग जिस जगह मेंटेन्ड है इंडिया, इससे कहीं कोसों आगे रहता, और एक हम लोग बहुत ही वर्ल्ड में एक अच्छी पोजीशन पर मेंटेन रहते. और इस तरीके से हम ये समझते हैं कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा और अच्छे से समझ में आ गया होगा. और आप सभी लोग चाहें तो अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड share other your friends to follow the channel. And you can just check out the links right down below in the description for the previous videos. And you can just continue, wait. We will provide you soon the further history lectures. And so on this note, we are going to say goodbye. Thank you very much for listening and watching me. Thank you.